Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 24. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with the summary of previous lecture. In previous lecture, we covered transactions. It's a very important concept and we will study some advanced topics in transactions as well. That how transactions are handled by the database management system. But it will be in our next chapters. Then we discussed about authorization and we briefly discussed discretionary access control and the other mechanism as well. That is used by the basically database management system. Then we talked about the grant and revoke statements that are used to provide privileges and then taking them back from certain users, and we finished the chapter number 6. That was the data definition language portion of the SQL. With these topics, as I discussed in my previous lecture, the major focus of the course is on the database design. After completing this course, you should be able to design a database system for any organization and you should be able to use the SQL to implement or manipulate the data available in that database. Let's start with the today's lecture, and just to tell you that we have skipped two chapters of the book. Chapter number 7, that is about the MS Access, and the chapter number 8 is about Oracle. We are skipping those chapters. Chapter number 7 is already covered in the lab portion and we are not covering Oracle. But if you are interested, you can just go through that chapter and you can have some additional information regarding an other database management system environment, that is Oracle. We will be using MySQL Server in our course and we are already learned MS Access. So I think these two database management system are enough to get familiar with the different database management system. But we will not be covering Oracle. But if you are interested, just go through this chapter. The basic concept remains same for almost any database management system. But definitely the environment may be different for Oracle and MySQL Server. Okay, these are the contents of our today's lecture. In our today's lecture, first of all, we will discuss about information system. Then we will discuss database system development life cycle. After that, we will discuss database planning. Then we will discuss system definition. And in the last, we will discuss about requirements, collection and analysis. So we start with chapter number 9, that is database planning, design and administration. So this is a very important chapter as far as its total theory. But keep in mind this chapter is a foundation for basically pursuing any kind of project in this particular area. If you want to design a database system, then this chapter will lay the foundation that how you will start a database project and what kind of life cycle and technique that you should use to pursue that particular project. Okay, let's formally start with this chapter, and the first term we will discuss, that is software depression. अगर हम गौर से देखें तो आप आज से 15-20 साल पहले या उससे पहले देखें तो आप देखते हैं कि बड़ी लिमिटेड एप्लीकेशंस जो हैं वो आपकी अवेलेबल थी और इनमें कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशंस भी थी और कुछ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशंस भी थी। लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं आपकी वो डेवलप की गई और आप देखते हैं कि एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा बहुतात है कि आप देखें कंप्यूटर्स पर बहुत सारी एप्लीकेशंस आपकी अवेलेबल हैं।
किसी भी फील्ड की बात कर लें, चाहे आप मेडिकल की बात कर लें, चाहे आप एजुकेशन की बात कर लें, इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लें, चाहे इंजीनियरिंग के हवाले से बात कर लें, तो आपको हर फील्ड के हवाले से बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको नज़र आएंगी। अब एप्लीकेशंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मतलब आप ये एक चीज़ जहन में रखें कि देयर वाज अ टाइम के व्हेन द हार्डवेयर कॉस्ट वर टू मच। फिर क्या होता गया इसके बाद कि हार्डवेयर की कॉस्ट कम होती गई, लेकिन सॉफ्टवेयर ने उसकी जगह लेनी शुरू कर दी और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो गई। और इसी तरह इट इज़ क्लेम्ड दैट देयर विल बी अ टाइम कि जब आपको हार्डवेयर तो मिल सकता है, फ्री मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यू हैव टू परचेज द सॉफ्टवेयर्स एंड दे विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं हम, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का जो है इशू ख़ास तौर पर जो स्पेसिफिक पर्पस की एप्लीकेशंस हैं उनके हवाले से हम देखें तो मतलब उनमें बहुत सारे इश्यूज हैं और यू नीड टू हैव कांस्टेंट मेंटेनेंस ऑफ दोज सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर 5 साल पहले बनाया गया उस वक्त रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं। अब आप जो है न्यू रिक्वायरमेंट्स ऐड कर दें एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर, अब ये भी एक इशू है। अब इसको अगर देखा जाए इन सारे इश्यूज को तो वी सी कि जी there has been a lot of efforts spent on maintenance and basically जब भी मेंटेनेंस करेंगे तो यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन ये वो सारे इश्यूज हैं जो सॉफ्टवेयर्स के साथ रिलेटेड है। तो इन इश्यूज में देखें, सबसे पहले आपका आ जाता है करेक्टिंग फॉल्ट्स, ठीक है, कि अगर फॉल्ट्स आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद ये है इम्प्लीमेंटिंग न्यू यूज़र रिक्वायरमेंट्स, यानी आप यूज़र्स की न्यू रिक्वायरमेंट्स को कैसे अपने सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड इज मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर टू रन ऑन न्यू और अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, कि अगर सॉफ्टवेयर में आप कोई चेंजेस अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप उसके लिए एक नया सिस्टम या एक नया प्लेटफॉर्म उसके लिए आप परचेज करेंगे या एग्जिस्टिंग पे ही आप उसको चलाएंगे। और लास्ट में वही मेंटेनेंस के हवाले से बात की जा रही है, ठीक है, तो मेंटेनेंस के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब भी मेंटेनेंस करेंगे तो वी नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो आप लोग देखें ये सारे वो इश्यूज हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड हैं। अब हम सॉफ्टवेयर डिप्रेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब जब ये हम सारी चीज़ें देखते हैं तो हमने देखा कि मतलब फिर बहुत सारे सर्वेज भी कंडक्ट किए गए जो इसी तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके हवाले से। तो दे केम अप विद कंक्लूजन के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो थे वो बेसिकली क्या हुए, लेट हुए। देखें पहला इशू यहाँ पे क्या आ रहा है मेजर, क्या कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपके लेट हो गए थे, ठीक है। सेकंड उसमें जो इशू आया था वो क्या हुआ था कि ओवर बजटिंग हुई, कि जी आपका एस्टिमेट जो बजट किया गया था उसमें बहुत ज़्यादा अखराजात हुए जो कि आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बने और वो जो सॉफ्टवेयर आपके प्रोजेक्ट्स बने दैट वाज अनरिलायबल, ठीक है, वो सारे क्या थे, अनरिलायबल थे। एंड दीज प्रोजेक्ट्स वर डिफिकल्ट टू मेंटेन। और लास्ट में क्या है, एंड फाइनली इट परफॉर्म वेरी पुअरली। कीप इन माइंड ये टर्म जो है लेट 1960s से जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के नेम से यूज हो रही थी, ठीक है, और बाद में इसको अब हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डिप्रेशन कहते हैं। यानी अब इसको जो कहा जाता है इसको सॉफ्टवेयर डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। लेट्स लुक एट सम रीजंस why these issues were basically there in software projects. Let's look at these reasons. First reason is lack of a complete requirements specification.
इसको सादा अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि जब तक आपको प्रॉब्लम का एग्जैक्टली नहीं पता आप उसका सलूशन कैसे दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज लैक ऑफ एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, कि आप कोई भी जो प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो यू नीड टू अडॉप्ट अ मेथड। अगर आप कोई डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट अचीव नहीं होंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। एंड फाइनली पुअर डिकम्पोजिशन ऑफ डिजाइन इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट्स, कि आपका जो डिजाइन होता है दैट इज वेरी पुअर और यू आर नॉट बेसिकली एबल टू डिजाइन इन सच अ वे कि आप उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर अप्रोच टू डेवलपमेंट वाज प्रपोज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइफ साइकिल, इसको हम ISLC भी बोलते हैं। अब इस सारी चीज को अगर देखें इट मीन्स टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट अप्रोच एंड दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम life cycle. Okay, let's start with information system. Information system could be defined as resources that enable collection, management, control, and dissemination of information throughout an organization. By any means, if you are able to perform these activities, then this is called information system. सेकेंड पॉइंट को मैं अब एक्सप्लेन करने लगा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस सेकेंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि जो आपका डेटाबेस है दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कीप इन माइंड कि डेटाबेस का जो डेवलपमेंट है या उसका यूजेज है दैट शुड बी थॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल यूजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। Okay, next topic is database system development life cycle. This is very important topic and it consists of many phases. We will discuss these phases one by one. Our first phase is database planning. Second phase is system definition. Next phase is requirements collection and analysis. Next is database design. Then database management system selection, and this phase is optional as well. Next phase is application design. Next is prototyping, and prototyping is also optional as well. Next is implementation phase. After implementation, data conversion and loading phase is there. Then testing phase, and in the last operational maintenance phase. We will discuss these all phases one by one in detail. Okay, let's start with the individual phases. Let's start with the first phase, that is database planning. Database planning begins with customer request to develop a database system. Keep in mind that must be integrated with overall IS strategy of the organization. In database planning, mission statement plays a very vital role. Mission statement for the database project defines major aims of database applications. First point is those driving database project normally define the mission statement. अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है दैट विल बी इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग दिस डेटाबेस प्रोजेक्ट, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग दिस मिशन स्टेटमेंट. Second point is mission statement helps to clarify purpose of the database project and provides clearer path towards the efficient and effective creation of required database system. अब जो मिशन स्टेटमेंट है इसमें आप ये क्या हेल्प कर रही है आपको, ये क्लैरिफाई स्पेसिफाई कर रही है डेटाबेस प्रोजेक्ट्स का पर्पस, ठीक है।
और ये आपको एक क्लियर पाथ दे रही है कि आपने डेटाबेस सिस्टम को क्रिएट कैसे करना है, एंड इट विल आल्सो गाइड यू इन डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड डेटाबेस system. Once mission statement is defined, mission objectives are also defined. Mission objectives are very crucial. They should be taken as very crucial in the sense each objective should identify a particular task that the database must support. इस केस में क्या हो रहा है कि हर ऑब्जेक्टिव जो है वो एक पर्टिकुलर टास्क को आइडेंटिफाई करेगा जो कि डेटाबेस उसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इट मे बी अकम्पनीड by some additional information that specifies the work to be done, the resources with which to do it, and the money to pay for it all. अगर आपको मिशन स्टेटमेंट और मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है तो you could include additional information that would basically include कि आपने क्या काम करना है, what kind of resources are required to perform this task, and the money that will be paid for this project as well. It is always recommended that you should follow some standards. So what kind of standards? अगर हम डेटाबेस के हवाले से बात करें तो we can say database planning should also include development of standards that govern. First one is how data will be collected, okay, and the second one is how the format should be specified. Next, what necessary documentation will be needed, and in the last, how design and implementation should proceed. अब इसमें क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले इस चीज के मुतालिक बात की जा रही है कि जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सेकंड में ये बताया जा रहा है कि कौन से फॉर्मेट आप स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। थर्ड ये है कि आपने जब ये प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या उसके लिए कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। और लास्ट में क्या बताया जा रहा है कि आप डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन को प्रोसीड कैसे करेंगे, वो कैसे प्रोसीड होनी चाहिए। तो अगर हम लोग डेटाबेस प्लानिंग के हवाले से बात करें तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने मिशन स्टेटमेंट के अंदर हमने इसके एम्स देखे थे कि हमने कौन कौन से एम्स डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मिशन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिव्स पे बात की थी कि डेटाबेस प्लानिंग के अंदर हमने मिशन स्टेटमेंट में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जब तक उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं होंगे तो हम उन जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं या यूज़र की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकते। अगर हम स्पेसिफिकली एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं तो यूज़र की जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी और यूज़र जो चीज़ अचीव करना चाह रहा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से, डेवलपर से या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम है, ठीक है, तो वो उसे वही चीज़ मिल रही है जो उसने स्टार्ट में बताई थी और वही अचीव होगा जो उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक था क्योंकि हम स्पेसिफिकली एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो जब आप ये दोनों चीज़ें फुलफिल कर लेंगे तो यूज़र को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर जब आप इम्प्लीमेंटेशन फेज तक जाएंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप डिमांड कर रहे थे। तो होपफुली अब आपको ये डेटाबेस प्लानिंग का जो फेज़ है ये क्लियर हो गया होगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो मैंने चीज़ें डिफ़ाइन की हैं आप उसे अंडरस्टैंड कर लें और उसे नोट डाउन कर लें कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपने फुलफ़िल करनी है, ठीक है। तो डेटाबेस प्लानिंग जो है हमारा फर्स्ट पार्ट था इस लाइफ साइकिल का। अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड फेज़ के बारे में बात करेंगे जो कि सिस्टम डेफिनेशन फेज़ है।
और सिस्टम डेफिनेशन फेज जो है वो भी एक क्रूशल फेज है, उसको भी आपने सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है।